So in the previous class of probability we were discussing about the binomial distribution. And binomial distribution we have discussed. At the same time you must be remembering about the concept of probability distribution using the concept of binomial distribution. वो भी बात किया था हमने. छोटा सा कंसेप्ट और देखते हैं हम यहाँ पर. जब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तब दो टर्म्स पढ़ी थी हमने. इनफैक्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. दैट मीन इज नथिंग बट द सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई. दैट वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ऑफ sigma of pi xi in whole square of that, and standard deviation is the square root of variance that we have discussed. Exactly in the same manner we are going to discuss the mean and variance for the binomial distribution. और derivation basic formula उधर ही है. sigma of pi xi is the mean and sigma of pi xi square minus of sigma of pi xi whole square is the formula for variance. But we are looking for the mean and variance of the binomial distribution which is going to be derived from the mean and variance of the probability distribution. But आपको जो facts ध्यान रखना है, mean and variance of binomial distribution. Binomial distribution ऑलरेडी आपको आइडिया है. नंबर ऑफ ट्रायल्स इज n. दो ही बातें पॉसिबल है यहाँ पर. जो भी इवेंट्स हैं वो दो ही बातें पॉसिबल है, सक्सेस या फेलियर. एंड p प्लस क्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 1. p प्लस क्यू जो होगा वो 1 होगा. सो n p q वाली बात होती है यहाँ पर, है ना. n p q and p प्लस q इज 1. n is the number of trials, p is the probability of success and q is the probability of that failure, and p plus q is always going to be equal to 1. जो दो फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा, दैट इज अबाउट द मीन, एंड मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is given by, simply it is given by n into p. n is the total number of trials which is to be conducted and p is the probability of success. और वेरिएंस की बात करें अगर हम, तो वेरिएंस is given as n into p into q, n p q. That is the formula for mean as well as variance. Direct results है ये. Direct तो नहीं है. These are derived from the mean and variance of the probability distribution. But that derivation is not required here. आपको बस ये दो बातें ध्यान रखना है यहाँ पर, mean और variance की. ठीक है ना? We will be looking for the questions based on that. Now we discuss some of the questions based on the mean and variance of binomial distribution. We take a question of EEE only, AIEEE 2004, and the question is, the mean and variance of a binomial distribution are 4 and 2 respectively. EEE का क्वेश्चन है और binomial distribution के लिए mean जो given है, mean and variance of a binomial distribution are 4 and 2 respectively. That mean is given as 4, variance is given as 2. और आपसे पूछा गया the probability of 2 successes. ठीक है. मीन इज गिवन एज 4, वेरिएंस इज गिवन एज 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस पूछा गया है. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस की बात कर रहा है वो. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस है दैट मीन इज गिवन एज np इज इक्वल टू 4 और वेरिएंस इज npq इज इक्वल टू 2. राइट. तो np की वैल्यू 4 है और npq की वैल्यू 2 है. मुझे तो 3 फैक्ट्स फाइंड आउट करना है. क्या? एन पी क्यू. और आ जाएंगे एन पी क्यू और उसको डिवाइड करेंगे एन पी से, तो यू विल बी गेटिंग क्यू इजीली. ज़्यादा सोचने की तो आवश्यकता नहीं है. एन पी क्यू इक्वल्स टू 2 एंड इफ इट इज टू बी डिवाइडेड बाय एन पी तो विल बी गेटिंग क्यू इक्वल्स टू 1/2. एन पी क्यू इज टू बी डिवाइडेड बाय एन पी. यार वैल्यू प्लेस कर दी, क्या बोलना. If value of q is equals to half, then value of p is also equals to 1 minus half, which is half. क्योंकि p plus q is always going to be equals to 1 for the binomial distribution. ये भी clear है. And as far as number of trials is concerned, तो np की वैल्यू अगर 4 है और p की वैल्यू अगर हाफ है
n की जो वैल्यू होगी 8 होगी, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 8, वैल्यू ऑफ p इज हाफ, वैल्यू ऑफ q इज 1/2. वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस. व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस आउट ऑफ हाउ मेनी ट्रायल्स? 8. यस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस की अगर बात करता है, मतलब 2 सक्सेस और 6 फेलियर, एग्जैक्टली 2 सक्सेस, इट इज टू बी रिटन एज NCR p raised to power r q raised to power n minus r. तो NCR we want 2 success, 8C2 NCR p raised to power r 1/2 to the power 2 and 1/2 raised to power 6. Simply that is the result. पॉइंट ये है इसमें कि ये 2 लाइन में आ गया हो तो ठीक है, बट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे क्या? पता तो हो आपको फैक्ट कि होता क्या मीन और होता क्या है वेरिएंस, वो तो 2 लाइन में गया ये, दैट्स अ प्रीवियस ईयर ट्रिपल ई क्वेश्चन, बट आपने स्किप कर दिया, पढ़ा नहीं, छोड़ दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा. Now these 2 questions based on the mean and variance of binomial distribution. The first question says the sum of mean and variance of a binomial distribution for 5 trials is 1.8. हमने केवल इतनी सी बात कही है कि मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज NP and variance of that binomial distribution is NPQ, and to find out the standard deviation it is root over variance is always. So solution for the first one, sum of mean and सबसे number of trials is given as 5 और mean और variance का sum NP plus NPQ, and that is coming as sum of mean is NP, sum of and variance NPQ, and sum of mean and variance is coming as 1.8. and you have to write the distribution लिखना है. इसका मतलब क्या है? you have to write N, P and Q. You have to find out those values and उसके according आप binomial distribution लिख के आओगे. So if you take NP common, it is going to be 1 plus Q is equals to 1.8. As far as value of N is concerned, it is given to you as 5. P plus Q is equal to 1. So P can be written as 1 minus into 1 plus Q equals to 1.8. 1 minus Q square 1.8 डिवाइडेड बाय 5 या 18/10 कर लें इसको, ठीक है ना. 5 टाइम्स 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 18/10, 9/5. कैन यू कमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू की वैल्यू बता पाएंगे आप मुझे? इट इज गोइंग टू बी सिंपल क्वाड्रेटिक देयर, क्वाड्रेटिक भी कॉमन है, डायरेक्टली क्यू स्क्वायर ही तो आएगा यहाँ से. बोले आप खुद ही कर लो अपने हिसाब से. 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 और q square is equals to 1 minus of 9/25 which is 16/25, and q is equals to plus minus 4/5. only plus sign is to be taken, minus sign का कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर. नेगेटिव साइन फॉर द q पॉसिबल ही नहीं है, प्रोबेबिलिटीज हैं वो तो p और q हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, 0 से 1 के बीच की बात है ओनली. सो q is coming as 4/5. q की वैल्यू अगर 4/5 है तो विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ p प्लस q इक्वल्स टू 1. तो q की वैल्यू अगर 4/5 है तो p की वैल्यू 1/5. नंबर ऑफ ट्रायल्स इज ऑलरेडी नोन टू यू एज 5. n आ गया, p है और q है, एंड यू हैव टू राइट द डिस्ट्रीब्यूशन. लिख सकते हो आप, कहां परेशानी है. p ऑफ x इक्वल्स टू r, तो x इक्वल्स टू r, दैट इज गोइंग टू बी NCR 5CR p raised to power r q raised to power n minus r, right? 5CR p raised to power r q raised to power n minus r, which is nothing but 5CR p is 1/5 raised to power r and q is 4/5 raised to power 5 minus r. r क्या क्या वैल्यू ले सकता है यहाँ पे? जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की लिखने की बात आएगी, उसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा तब क्या r की वैल्यूज हो सकती हैं? 0 1 2 3 4 5 है ना. इंटीग्रल वैल्यूज ओनली.
दैट इज नथिंग बट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा यहाँ से. तो सम ऑफ मीन एंड वेरियंस, दिस इज द मीन, दिस इज द वेरियंस, एंड सम इज गिवन एज 1.8. नंबर ऑफ ट्रायल्स आर गिवन टू यू एज 5. सॉल्व किया आपने, p की वैल्यू को 1 माइनस क्यू रखा, q में क्वाड्रेटिक बनी, या q की दो वैल्यूज आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यू का प्रश्न ही नहीं उठता, q इक्वल्स टू 4/5, सो p इक्वल्स टू 1/5, एंड यू रिटर्न द डिस्ट्रीब्यूशन. ये जनरल टर्म में लिख दिया आपने 5CR p रेज़ टू पावर r q रेज़ टू पावर n माइनस r. जस्ट थिंक ओवर द सेकंड वन. सेकंड देखें जरा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 24 and 128 रेस्पेक्टिवली, एंड अगेन यू हैव टू राइट द डिस्ट्रीब्यूशन. अब की बार बोलता है सम ऑफ मीन एंड वेरियंस एक इक्वेशन बनेगी, और प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरियंस दूसरी इक्वेशन बनेगी. करिए जरा. Now look for the next one. Sum and product of mean and variance of binomial distribution are given as 24 and 128 respectively. Sum of mean and variance NP plus NPQ is given as 24, and product is what? NP into NPQ is given as 128. डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, तीन बातें आपको फाइंड आउट करना है. वन इज अबाउट n नंबर ऑफ ट्रायल्स, p एंड q, और p आएगा तो q भी आ जाएगा, एज p प्लस q इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो इफ यू टेक np कॉमन, इट इज 1 प्लस q इज इक्वल टू 24. यहाँ से अगर देखेंगे तो n स्क्वायर p स्क्वायर इंटू q इंटू 128. ये दो इक्वेशंस हैं. अच्छा, q को भी आप चाहें तो q को p के टर्म में ला सकते हैं, या p को q के टर्म में ला सकते हैं, जैसा आप चाहें. इट इज n इंटू p को लिखा आपने p प्लस q इक्वल्स टू 1 माइनस q इंटू 1 प्लस q इक्वल्स टू 24, n टाइम्स 1 माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू 24. ठीक है. यहाँ पे n स्क्वायर p स्क्वायर को लिखा अगेन. या आप देखें जरा हाउ टू सॉल्व दिस. दो इक्वेशन दो अननोन के टर्म में लिख सकते हैं. p प्लस क्यू इक्वल्स टू p, करिए जरा सॉल्व दो इक्वेशंस को लेते हुए. आएगा, क्यों नहीं आएगा. ये n इंटू 1 में इसको डिवाइड कर सकते हैं, कहाँ परेशानी है. आएगा, कहाँ जाएगा. लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, और 1 को 2 से डिवाइड किया. इफ आई डिवाइड 1 बाई 2 तो ये हो जाएगा n इंटू, इट इज 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू स्क्वायर, या a प्लस बी ए माइनस बी. आप ये ऑब्जर्व करोगे कि 1 माइनस क्यू कैंसिल हो रहा है ना. तो इट इज 1 माइनस क्यू देयर इन द न्यूमरेटर इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू. वन 128 डिवाइडेड बाय 24. ठीक है, करिए फर्दर सॉल्व. लेकिन व्हाट अबाउट n. यहां पर एक इक्वेशन जो आ रही है np प्लस npq इक्वल्स टू 24, एंड द सेकेंड वन इज अबाउट np इंटू npq इक्वल्स टू 128. इसको सॉल्व कर रहे हैं आप. 1 और 2 को आपने सॉल्व किया, ठीक है, बट स्टिल n इज प्रेजेंट देयर. तो ये तो दो जो इक्वेशन आने वाली है यहाँ पर, वो एक अननोन में नहीं आएगी q के टर्म में, वो q और n के टर्म्स में आ रही है. ठीक है. एनी अदर वे, कुछ और सोच सकते हैं. हाँ जी, करने के कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं. देखें जरा, सोचें क्या क्या किया जा सकता है. देखें जरा, ट्राई करिए. इसको स्क्वायर करके इससे डिवाइड करने पर n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐसा भी सोच सकते हैं. बोलिए. अच्छा, ठीक है. np को x ले लें और npq को y ले लें, तो इट विल बी x प्लस वाई इक्वल्स टू 24, और यहाँ से आ जाएगा xy इक्वल्स टू 128. कर सकते हैं. तो वो दो इक्वेशन दो अननोन के टर्म में बन जाएगी बात. ठीक है, देख लीजिए. What they are suggesting that x plus y equals to 24 and x into y equals to 128. NP has been taken as x and NPQ has been taken as y.
ठीक है, कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। y की वैल्यू 128 बाय x, या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको स्क्वायरिंग करके डिवाइड करें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा वो, लेकिन बन तो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है ना, ये जैसे एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर दिक्कत दे रहा है ना, तो इसका स्क्वायरिंग कर ले, इसका स्क्वायरिंग करके हाँ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखो कैसे, एक तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपको, ठीक है। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 1/2 मैंने किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड किया, बट फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने में अपनी प्रॉब्लम क्या है कि n भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले एन स्क्वायर इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, हमने लिखा इसको एन स्क्वायर 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर 1 प्लस क्यू होल स्क्वायर इंटू 24 स्क्वायर, व्हाट इज दैट 24 स्क्वायर 576। और अब ट्राई करें इसको कि अब 1/2 करें, इसको अब 2 कहते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, सीधी सी बात है। यहां पर फिलहाल अपना इंटेंशन ये है कि आपको एक जानकारी हो जाए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन ऑफ दैट इज गिवन बाय एनपी एंड वेरिएंस इज गिवन बाय एनपी क्यू, बस, ठीक है। तो ये तो अब 1/2 कर लो आप, तो डेफिनेटली एन स्क्वायर कैंसिल होगा और 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बात बन जाएगी। इट इज गोइंग टू बी क्यू अपॉन 1 प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 576। अभी सॉल्व हो जाएगा क्यू के टर्म्स में क्वाड्रेटिक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट होगी, या फिर दूसरी अप्रोच जो आप लोगों ने सजेस्ट करी वो भी ठीक है। एनपी को x लिया, एनपी क्यू को y लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 24, एक्स वाई इक्वल टू 128 और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, फाइन, दैट कैन ऑल्सो बी डन। और एनपी क्यू तीन अननोन, तीनों फाइंड आउट अगर आपने कर लिए तो फाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है तो उसमें क्या होगा, एनसीआर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर, ठीक है ना।